پاکستان کا ایک بڑا پولیٹیکل کرپشن کیس جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف 10 سال کا جیل سینٹنس ایشو کیا گیا اور ان کی بیٹی مریم نواز پر 7 سال کا، اور ساتھ ہی ان پر 170 سے 180 کروڑ کا فائن بھی لگا۔ یہ کیس ایک ڈاکومنٹ لیک کی وجہ سے پتا چلا تھا۔ اس لیک میں 11.5 ملین ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے، جس میں ای میلز، پی ڈی ایفs وغیرہ بہت کچھ تھا۔ اور یہ لیک کیس اس لیے بھی ایک بڑا کیس ہے کیونکہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر جرنلسٹ نے انویسٹیگیٹ کیا۔ اپوزیشن خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے ان لیکس کو سیدھا منی لانڈرنگ کا ثبوت قرار دے دیا۔ حکومت کی طرف سے وضاحت دینے کی کوشش ہوئی، مگر ہر جواب کے ساتھ نئے سوال پیدا ہوتے گئے۔ یہ صرف ایک کرپشن کیس نہیں تھا، یہ ایک ایسی کرائسس تھی جو دھیرے دھیرے جوڈیشری، سیاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ٹکراؤ میں تبدیل ہو گیا، اور اسی کہانی نے اگلے 10 سالوں میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ کیسے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی اور کیسے یہ الزامات سچ ثابت کیے گئے، آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اپریل 2016 ایک انونیمس شخص نے 11.5 ملین ڈاکومنٹس لیک کیے۔ یہ ڈاکومنٹس ایک لا فرم کے ڈاکومنٹس تھے جو آف شور کمپنیز بناتی تھی۔ یہاں سے لیک ہونے والے 11.5 ملین فائنینشیل اور لیگل ریکارڈز نے دنیا بھر کا ایک شیڈو فائنینشیل سسٹم کو ایکسپوز کیا، جہاں شیل کمپنیز کے ذریعے دولت کو چھپایا جاتا تھا اور خود کو انویسٹیگیشن سے بچایا جاتا تھا۔ اب یہ پیسے شیل کمپنیز کیسے ہینڈل کرتی ہے، اس کو ایک ایزی ایگزامپل سے سمجھو۔ علی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ لوگ یا گورنمنٹ کو پتا چلے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس لیے علی کیا کرتا ہے، وہ ایک شیل کمپنی بناتا ہے کسی اور ملک میں جہاں ٹیکس رولز بہت سافٹ ہیں۔ اس کمپنی کا نام بھی رکھتا ہے ABC ٹریڈنگ لمیٹڈ، لیکن اصل میں اس کا کوئی ریئل بزنس نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بزنس نہیں ہوتا تو کمپنی کام کیسے کرتی ہے؟ ریئل کمپنیز پروڈکٹ بناتی ہیں یا سروسز دیتی ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں اور آفیسز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایکچوئل کام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ شیل کمپنی صرف ڈاکومنٹس میں ایگزسٹ کرتی ہے، نہ امپلائیز ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی آفس، مطلب صرف بینک اکاؤنٹ اور لیگل رجسٹریشن ہوتی ہے۔ شیل کمپنیز کا مین یوز پیسہ ہولڈ کرنے کے لیے اور اونرشپ چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنا پیسہ کیوں چھپانا چاہے گا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ علی کے پاس جو پیسہ ہے وہ انلیگل ہو سکتا ہے، یا وہ پیسہ کرپشن سے آیا ہو۔ دوسری وجہ ہے کہ علی ٹیکس سے بچنے کے لیے شیل کمپنی بناتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علی کے اوپر بہت زیادہ لون ہو یا کوئی لیگل کیس ہو اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی شیل کمپنی بنا سکتا ہے۔ لیکن چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس لیے وہ اپنے پیسے ہڈن رکھنے کے لیے ایک شیل کمپنی بناتا ہے۔ اب آپ یہ سب سمجھ گئے، لیکن شریف فیملی نے کیوں شیل کمپنیز بنائی تھی؟ ان کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ 3 اپریل 2016 کو جب یہ ڈاکومنٹس پبلک ہوئے تو گلوبل کیپٹلز میں ایک ہلچل مچ گئی، لیکن پاکستان میں اس کا اثر زیادہ گہرا تھا کیونکہ اس میں سیدھے پرائم منسٹر کی قریبی فیملی ممبرز کے نام شامل تھے۔ ریکارڈز کے مطابق نواز شریف کے بچے مریم، حسن اور حسین 4 آف شور کمپنیز سے لنکڈ تھے۔ ان کمپنیز کے نام تھے نیسکول لمیٹڈ، نیلسن ہولڈنگز لمیٹڈ، کومبر گروپ INC اور ہنگن پراپرٹی ہولڈنگز لمیٹڈ۔ یہ تمام انٹیٹیز لندن کے اپ سکیل علاقے پارک لین میں موجود ایون فیلڈ ہاؤس کی لگژری پراپرٹیز کی رجسٹرڈ اونرز تھیں۔ اس ریویلیشن نے فوراً سیاسی طوفان کھڑا کر دیا۔ اپوزیشن نے اسے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا واضح ثبوت قرار دیا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس ایشو کو پبلک نیریٹو کا مرکز بنا دیا اور مطالبہ کیا کہ پرائم منسٹر اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے۔ نواز شریف نے 5 اپریل 2016 کو قوم سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے کوشش کی کہ اپنے آفس کو اپنے بچوں کے بزنس سے الگ دکھایا جائے۔ اس کے بعد 22 اپریل کو دوسرا ایڈریس بھی کیا گیا، لیکن ان بیانات میں وہ وضاحت پیدا نہیں ہو سکی جو پریشر کو کم کرتی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جوڈیشل کمیشن بنانے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا کیونکہ یہ ٹرمز آف ریفرنس پر سخت اختلافات تھے۔ یہ ڈیڈ لاک کرائسس کو اور گہرا کرتا گیا۔ یہاں سے پاناما پیپر صرف ایک لیک نہیں رہا، یہ پاکستان کے سیاسی نظام کا ایک ایسا امتحان بن گیا جہاں ہر دن نئے الزامات، نئے سوالات اور بڑھتی ہوئی سیاسی ٹینشن نے اس کیس کو ایک نیشنل کرائسس میں تبدیل کر دیا۔ اس پورے کیس کا سینٹرل پوائنٹ تھا لندن کے ایون فیلڈ ہاؤس کے فلیٹس، جن پر اونرشپ نے سب سے زیادہ سوالات پیدا کیے۔ انویسٹیگیشن کا فوکس تھا کہ فلیٹ 16، 16A، 17 اور 17A پر یہ پراپرٹیز الگ الگ آف شور کمپنیز کے ذریعے ہولڈ کی گئی تھی۔ فلیٹ 17 اور 17A نیسکول لمیٹڈ کے نام پر تھے، جبکہ فلیٹ 16 اور 16A نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ کے ذریعے اون کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ فلیٹ 12A فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے ذریعے مینیج کیا جا رہا تھا، جو حسن نواز کی کنٹرول میں بتایا گیا۔ شریف فیملی کا سٹانس یہ تھا کہ یہ پراپرٹیز 2006 میں حاصل کی گئی تھی
की। उनका कहना था कि ये इन्वेस्टमेंट कतरी रॉयल फैमिली के साथ एक सेटलमेंट का नतीजा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और यूके लैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड ने एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन फ्लैट्स को 90s में खरीदा गया था। यहाँ से सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया। अगर प्रॉपर्टीज 90s में खरीदी गई थी तो उस वक्त शरीफ फैमिली के बच्चे या तो माइनर थे या तो स्टूडेंट। उनके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना लॉजिकली मुमकिन नहीं लगता था। इससे ये सवाल और गहरा हो गया कि असल पैसा कहाँ से आया। शरीफ फैमिली ने अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए कतरी लेटर पेश किया। इस लेटर में कहा गया कि लंदन प्रॉपर्टीज असल में एक पुरानी इन्वेस्टमेंट का नतीजा है जो मियां मोहम्मद शरीफ ने 1980 में अल थानी फैमिली के साथ की थी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने केस को क्लियर करने के बजाय मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि पहली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक स्टेटमेंट्स में इस कतरी कनेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। तो जुडिशरी के लिए एक नया सवाल बन गया, क्या असल कहानी छुपाई गई थी? इस स्टेज पर पनामा केस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स का इशू नहीं रहा, ये क्रेडिबिलिटी का केस बन चुका था, जहां हर क्लेम और हर डॉक्यूमेंट को डिटेल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। जुडिशियल कमीशन पर इत्तेफाक न होने के बाद ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, जहां इसे आर्टिकल 1843 के तहत सुनाया गया। नवंबर 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई, जमात इस्लामी और दूसरी पार्टीज की पिटीशंस को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया। अब ये केस सिर्फ सियासी डिबेट नहीं रहा, बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन चुका था। शरीफ फैमिली की तरफ से अपनी स्टांस डिफेंड करने के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट पेश किया गया, कतरी लेटर। लेकिन बेंच ने इस लेटर को बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ देखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क दिया कि इस डॉक्यूमेंट ने प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक स्टांस को कंप्लीट चेंज कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पहले स्पीचेस में कतरी कलेक्शन का कोई जिक्र नहीं था। कोर्ट की तवज्जो अब एक बुनियादी सवाल पर थी, मनी ट्रेल। गल्फ स्टील मिल्स की सेल से जो पैसा आया वो दुबई से कतर और फिर लंदन कैसे पहुंचा, ये सिलसिला क्लियर करना केस का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बन गया। 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क फैसला सुनाया। इस फैसले पर थोड़े जजेस एग्री थे और थोड़े नहीं। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी डिसेंटिंग नोट्स में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोर्ट और कौम के सामने ईमानदारी से काम नहीं लिया, इसलिए उन्हें फौरन डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी जजेस जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख अमजद सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अभी इतने सबूत मौजूद नहीं कि सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसलिए उन्होंने एक नया कदम उठाया, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT बनाने का हुक्म दिया गया, जो इस पूरे मैटर की गहरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहाँ से इस केस एक नए मरहले में दाखिल हो गया, जहाँ फैसला सिर्फ कोर्ट रूम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच सामने लाने की कोशिश शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 मई 2017 को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT फॉर्म की गई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। JIT की लीड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वाजिद जिया के पास थी। इस टीम में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। इस टीम को 13 स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने थे, जिनका ताल्लुक शरीफ फैमिली की वेल्थ, गल्फ स्टील मिल्स की सेल और एवनफील्ड प्रॉपर्टीज की ओनरशिप से था। इन्वेस्टिगेशन का दौर इंटेंस और कंट्रोवर्शियल रहा। इस प्रोसेस के दौरान हुसैन नवाज की अपीयरेंस की CCTV इमेज लीक हुई, जिसने इन्वेस्टिगेशन के अराउंड मीडिया अटेंशन और बढ़ा दी। इसके अलावा JIT ने एलिगेशंस रेज किया कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड्स को टेम्पर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेटर्स की सर्विलेंस की जा रही है। मतलब आसान अल्फाज में बताऊं तो कोई इन्वेस्टिगेशन में हेरा फेरी कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन टीम पर सीक्रेटली नजर रख रहा है। इन 7 दिनों की प्रोसेस के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज सबको इंट्रोगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लंदन प्रॉपर्टीज तक महदूद नहीं थी, इसका स्कोप सऊदी अरेबिया का अल अजीजा स्टील मिल्स और UK का फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ग्रुप तक भी फैल गया। JIT की फाइनल रिपोर्ट ने इस केस का रुख एक ऐसे मरहले की तरफ मोड़ दिया जहां ऑफशोर कंपनीज का मसला नहीं रहा, बल्कि एविडेंस की क्रेडिबिलिटी और डिस्क्लोजर लॉ का सवाल सामने आ गया। इस रिपोर्ट में 2 ऐसे की फाइंडिंग सामने आए जो केस के टर्निंग पॉइंट्स बन गए। पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट था फोर्ट गेट। मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई ट्रस्ट डीड को फोरेंसिक एनालिसिस किया गया। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना था कि वो सिर्फ ट्रस्टी हैं और ऑफशोर कंपनीज की असल मालिक नहीं। लेकिन JIT ने एक सीरियस एनोमली आइडेंटिफाई की। ये डॉक्यूमेंट्स फरवरी 2006 के डेट के साथ प्रेजेंट किए गए थे, मगर उनमें कैलिबरी फॉन्ट्स यूज हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कैलिबरी फॉन्ट 2006 में डेवलप्ड हुए थे, लेकिन पब्लिक रिलीज जनवरी 2007 में माइक्रोसॉफ्ट विस्टा के साथ हुआ। इससे JIT ने
कंक्लूजन निकाला कि डॉक्यूमेंट्स बैकडेटेड और फैब्रिकेटेड हो सकती हैं। ये फाइंडिंग शरीफ फैमिली के डिफेंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन गई। दूसरा मेजर रिविलेशन था इकामा यानी वर्क परमिट का इशू। नवाज शरीफ का नाम FZE कैपिटल के चेयरमैन के तौर पर सामने आया, जो दुबई बेस्ड कंपनी थी और उनके बेटे हसन नवाज की ओनरशिप में थी। इस पोजीशन के जरिए उन्हें सैलरी या रिसीवेबल्स मिलने का हक था, लेकिन ये इनकम उन्होंने अपनी इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर नहीं की। डिफेंस का आर्ग्यूमेंट था कि ये सैलरी एक्चुअली विड्रॉ नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे भी एसेट्स कैटेगरी में आते हैं। यहाँ केस का फोकस चेंज हो गया। अब मसला ऑफशोर प्रॉपर्टीज का नहीं था, बल्कि हॉनेस्टी और डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस का बन चुका था। GIT रिपोर्ट के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फाइनल हियरिंग के लिए आया। अब प्रेशर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी फैसला करना जरूरी हो चुका था। 28 जुलाई 2017 को पाकिस्तान की तारीख का एक अहम फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। फैसले की बुनियाद आर्टिकल 621F पर रखी गई, जिसमें ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर सादिक और अमीन हो। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि FZE कैपिटल से मिलने वाली सैलरी को डिस्क्लोज न करना हॉनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। इस वजह से नवाज शरीफ को न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया, बल्कि उन्हें पब्लिक ऑफिस के लिए भी डिस्क्वालीफाइड करार दिया गया। इस फैसले के साथ एक नया लीगल फेज शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने NAB को भी डायरेक्ट किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन रेफरेंस फाइल किए जाए। यहाँ से केस जुडिशियल रिव्यू से अकाउंटेबिलिटी ट्रायल्स की तरफ चला गया, और जो इंक्वायरी एक फाइनेंशियल लीक से शुरू हुई थी वो अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तब्दील हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB ने शरीफ फैमिली के खिलाफ फॉर्मल करप्शन रेफरेंसेस फाइल कर दिए। अब केस सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी ट्रायल्स का शेप ले चुका था। जुलाई 2018 में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पहली बार फैसला सुनाया। A1 फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा दी गई, जबकि मरियम नवाज को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ये केस लंदन के फ्लैट 16, 16A, 17 और 17A से रिलेटेड थे, जिन्हें इलीगल एसिड्स और अनएक्सप्लेन्ड विल का हिस्सा समझा गया। इसके अलावा 2 और मेजर रेफरेंसेस भी चल रहे थे। अल अजीजा केस का वर्डिक्ट जज अरशद मलिक ने दिया, जो बाद में खुद इस फैसले को कंट्रोवर्शियल बताने लगे, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने शरीफ को एसिड्स बियॉन्ड मींस का जिम्मेदार करार दिया। यहाँ पनामा केस का एक और फेज कंप्लीट हुआ, जहाँ एक पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन अब फॉर्मल कन्विक्शन और जेल स्टांस तक पहुँच चुका था। 2018 में कन्विक्शंस के बाद नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सफर एक नया और मुश्किल फेज में दाखिल हो गया, लेकिन 2019 के एंड में उनकी हेल्थ इमरजेंसी ने इस सिचुएशन को और चेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी ताकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन जा सके। पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख पर गहरा असर छोड़ा। इस केस के नतीजे में नवाज शरीफ को न सिर्फ अपने ओहदे से हटना पड़ा, बल्कि उनके खिलाफ मजीद लीगल कार्रवाई भी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस चैनल विल बी योर वॉइस।